Good morning everyone. This is Priyanka Rajput and you are watching to my channel Maths Beans. Today we will study about the topic Basic Proportionality Theorem BPT. So this topic is very important for class 10th. It comes in the board exam and it repeats many times. So this is very important topic for class 10th. Look at the statement. If we draw a line which is parallel to any side of a triangle. So first of all, we will draw a triangle here. If we draw a line which is parallel to any side of a triangle, we have to draw a line which should be parallel to any side of the triangle. सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो लाइन ट्राइंगल के तीनों साइड में से किसी भी एक साइड से पैरेलल हो. So let's draw a line here. We have drawn this line which is parallel to this side. Name it A, B, C, D, E. And intersects the other two sides at different points. Look, DE is intersecting AB at D and AC at E. Then this line divides these two lines in same ratio. Then this line, which line? DE line. It divides AB in the ratio AD upon DB and AC in the ratio AE upon EC. हमें एक ऐसी लाइन लेनी है ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के साथ पैरेलल हो, जो लाइन बाकी दोनों साइड को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, जैसे कि यहाँ D और E इंटरसेक्ट कर रहा है और AB को ये लाइन D पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को ये लाइन E पर इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन. दिस इज द स्टेटमेंट. क्वेश्चन डायरेक्टली आता है बोर्ड्स में, स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम. सो दिस इज द स्टेटमेंट. नाउ विल कम टू द गिवन पॉइंट. गिवन, what is given here? Yes, it is given that DE is parallel to BC according to the statement. So DE is parallel to BC, where DE intersecting AB at D and AC at E. Now we will move on to the next construction. Construction part. We will construct a line M which will be perpendicular to AC from D and from E, and this will be perpendicular here. So what we constructed? We constructed a line DM perpendicular to AE and a line EN perpendicular to AD. This is our construction. हमने दो लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ की हैं. एक लाइन DM परपेंडिकुलर बनाई है AE पर और EN परपेंडिकुलर बनाई है AD पर. दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन. आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी हैव टू राइट टू प्रूव. व्हाट वी हैव टू प्रूव? दैट this line divide these two line in the same ratios. So AD upon DB is equals to AE upon EC. This is our, this we have to prove. Now proof. We will start with the proof. चलिए अपन को प्रूफ के साथ आगे बढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्रायंगल A D E, हम सबसे पहले ट्रायंगल ADE की बात करते हैं. सो व्हाट वी नो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो दिस विल बी हाफ इंटू, व्हाट विल बी द बेस? बेस इज AD and height is
En. En is the perpendicular height upon AD. So height is En. We'll take this. Okay. Area of AD triangle ADE is equals to half into base into height. ठीक है. Again we will join DE and we will join DC. We will join DE and we will join DC. Okay, now in triangle BNE, in triangle BDE, sorry, in triangle BDE, in triangle BDE, ट्राइंगल BDE में हम फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू, अगेन सेम, हाफ इंटू बेस. हमारा बेस क्या है? बेस, इस बेस को ही जब हम एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, तब हमारा परपेंडिकुलर हमको क्या मिल रहा है? EN. सो हियर बेस विल बी BD एंड आवर परपेंडिकुलर हाइट इज EN. चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अपॉन में लिखेंगे. फॉर दिस हम रबिंग दिस, अच्छा यहाँ लिख देते हैं लाइक दिस, यहाँ लिख देते हैं. हम करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू half into AD into EN upon half into BD into EN. Look at this equation. अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है हम उसको कैंसिल आउट करेंगे. हाफ इट्स गॉन. EN दिस इज ऑल्सो गॉन. सो हमारे पास क्या रिमेनिंग है? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD. मैं थोड़ा साइड हो जा रही हूँ, आप लोग एक शॉट ले लीजिए. ओके अब इसके बाद हम इसे रब करते हैं. इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. Sorry, proof. Now we will take this triangle ADE. In triangle okay, so we will start with our proof. In triangle ADE, again we will take the triangle ADE, but this time we will change our base. Area of triangle ADE. This time we will change our base, so our perpendicular height will also be changed. I will take the base AE. This time we will take the base AE. Again the same formula, half into base into height. We will take the base AE and we will take the perpendicular height along this base. इस base के along में कौन सी height है? DM. So we will take DM here. Again in triangle we will take the triangle EDC. We will take the triangle EDC. Again area of triangle EDC is equals to same formula, half into base. What base we will take? We will take the base EC and the perpendicular height will be DM, because if we will extend this base, the perpendicular height will be DM. Half base EC into
हाइट dm. ठीक है. Now we will again make an equation. Area of ADE upon area of EDC is equals to इसका हाफ इंटू AE इंटू DM and for this half into EC into DM. जो कैंसिल हो रहा होगा उसे कैंसिल करेंगे. This and this, this and this. What we will get? We will get AE upon EC. Name it equation 1 and this will be equation 2. Again हम साइड हो रहे हैं, आप एक शॉट ले लीजिए. चलिए, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं. एक आ गई है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ EDC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC एंड एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD. चलिए, एक चीज़ आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारे पास साइड्स के रेशियो ये देखिए आ गए हैं. देखिए ये वाला AE अपॉन EC आ गया है और AD अपॉन BD आ गया है हमारे पास. अगर हम किसी भी तरीके से ये दोनों दिस एंड दिस अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू मेक इट इक्वल. हमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए न्यूमरेटर पार्ट इक्वल है, डिनोमिनेटर पार्ट अगर हम इक्वल कर दे रहे हैं तो फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा. चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हमारे पास है यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. दिस एंड दीज आर पैरेलल लाइंस. हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है इन 9th क्लास. इफ ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया. देखिए यहाँ से ये एक पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है. दो पैरेलल लाइंस हैं. इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हैं. एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है. दो ट्रायंगल बन रहे हैं और हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो और सेम बेस से बन रहे हो, D इज द कॉमन बेस फॉर बोथ द ट्रायंगल्स. अगर दो ट्रायंगल पैरेलल लाइंस के बीच में हो और सेम बेस पर है तो उनका एरिया इक्वल होता है. सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल DE BDE triangle BDE is equals to area of triangle EDC. यहाँ पर रीजन आप लोग लिखेंगे triangles on the same base and between the same parallel. ये पैरेलल की साइन है. ट्रायंगल अगर सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल्स है तो उनका एरिया इक्वल होता है. सो वी गॉट दिस स्टेटमेंट. यहाँ से हमें मिल गया कि दिस EDC इज इक्वल्स टू BDE. अब मैं एक काम करती हूँ, मैं EDC के जगह BDE लिख लेती हूँ क्योंकि ये दोनों का एरिया तो सेम है. तो मैं एरिया ऑफ EDC की जगह एरिया ऑफ EDC लिख लेती हूँ. तो ये मेरी इक्वेशन जो बन जाएगी ये वाली, वो कुछ ऐसी बन जाएगी. एरिया ऑफ ADE, यहाँ से लिखते हैं, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ EDC इज इक्वल्स टू, EDC के जगह BDE लिखना है हमको तो EDC की जगह हम लिख लेते हैं, EDC की जगह हम BDE लिख लेते हैं. BDE इज इक्वल्स टू AE अपॉन
EC। कुछ नहीं किया है हमने इसकी जगह पर ये लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी प्रूफ किया कि इन दोनों का एरिया सेम है। सो वी गॉट इक्वेशन 3। चलिए, हमें इक्वेशन 3 मिल गया यहाँ से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 इक्वेशन को ध्यान से देखिए। 2 नॉट 2 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग, तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि दोनों की ही LHS साइड सेम है। अगर दोनों की ही LHS साइड सेम है तो दोनों की RHS भी सेम होगी। सो इट विल बी AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD। देखिए, ये जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ आ चुका है। हमको यही प्रूफ करके देना था कि दोनों लाइंस का रेशियो, दोनों ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो बराबर है। वी हैव प्रूव्ड इट। AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सो दिस इज द प्रूफ फॉर क्लास 10th। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BPT थ्योरम, कभी कभी ये BPT थ्योरम के नाम से आ जाता है, कभी कभी पूरा ही लिख कर देगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ देगा, तो आप लोग को इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ लीजिए इस ट्रायंगल से, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी गॉट द आंसर। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।